Hello students, today again I am going to continue with the same chapter number 4, the Mughal Empire. Yes student, this is the part 3 of the same chapter. In this lecture students, I am going to tell you about what is Akbarnama and Ain-e-Akbari. Yes student, you all of you know about Akbar very well. Who was he? He was one of the greatest ruler of the Mughal Empire. So he ordered Abul Fazl to write his biography. Who was Abul Fazl? He was one of the courtier in the court of Akbar and he was a great philosopher. So he gave him order to write the history of his rule. कि मेरे बारे में मेरी पूरी history आपने लिखनी है. So Abul Fazl wrote Akbarnama. So what is Akbarnama? It is a biography of Akbar written by Abul Fazl. So Abul Fazl divided this Akbarnama into 3 volumes. For an example, social sciences are subject. It has again 3 volumes like geography, history and civics. Same is the case with Akbarnama. So all these 3 volumes are very important. Come to the first volume. The first volume, Ancestors and Childhood. It means that in the first volume, Abul Fazl deals with the forefathers. Who were the ancestors? Forefather. उनके जो पूर्वज थे, उनके बारे में बताया and his childhood. Yes, second volume. In the second volume, he recorded all the events of his rule. Events means all the victories, his battles. For example, Battle of Panipat. So उसकी जो जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, उनके बारे में किसमें बताया हुआ in the second volume. Yes, student, third volume. That is very important. This is known as Ain-e-Akbari. This is a great source of information about the different aspects of Akbar's rule. Yes, we will read about Ain-e-Akbari in detail. Yes student, first of all it deals with Akbar's administration. Administration means ruling period. कैसे उसने जैसे मनसबदारी स्टार्ट की, जागीरदारी स्टार्ट की, हाउस होल्ड के बारे में बताया है, आर्मी कैसी थी, रेवेन्यू टैक्स कैसे इकट्ठा होता था, ज्योग्राफी मीन्स क्या, कौन कौन सी नदियाँ उसके एम्पायर के अंदर थी, पेड़ पौधे पहाड़, इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है. नंबर 2, इट प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया. इसमें उसने ये भी बताया कि इंडिया में जो लोग थे उनका क्या कल्चर था, क्या ट्रेडिशन वो फॉलो करते थे, क्या उनके रीति रिवाज थे. नंबर 3, इट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल. ये स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल मीन्स कि रिकॉर्ड, पूरा रिटर्न रिकॉर्ड है उनके पास. डिटेल्स अबाउट थिंग्स लाइक क्रॉप्स कि कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस की है, यील्ड मीन्स कितनी प्रोडक्शन हुई है, प्राइसेस मीन्स क्या कीमतें मिली हैं, क्या वेजेस दी गई हैं मजदूरों को, कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है. सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन Ain-e-Akbari. So this is all about Akbarnama. Who wrote Akbarnama? Abul Fazl wrote Akbarnama and it is the biography of Akbar. Yes student, now our next topic is Akbar's policy. This is our next concept. Yes, Akbar's policy. As you all know, Akbar's policies means administration of Akbar. Yes, written in Akbarnama, especially in Ain-e-Akbari. यानी कि अकबर ने जो भी पॉलिसीज़ अपनाई, जो भी उसने सिस्टम स्टार्ट किए, जब्त, ज़मींदार, मनसबदार, दे ऑल वर रिटन इन Ain-e-Akbari. सो उसने क्या किया? एम्पायर. यस, उसके टाइम में जो एम्पायर था, मुग़ल एम्पायर था, ही डिवाइडेड द मुग़ल एम्पायर इनटू डिफरेंट प्रोविंसेस. सूबास को क्या कहते हैं? प्रोविंसेस. और हम इसे प्रोविंसेस, सूबा कुछ भी कह सकते हैं. सो उसने अपने एम्पायर को डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट सूबा. सो ईच सूबा वाज गवर्नड बाय अ सूबेदार, कि हर एक सूबा में से कौन था? एक सूबेदार था. नंबर 2, दीवान. दीवान होता है फाइनेंशियल ऑफिसर, जो पैसे की रेख दे करता है. एक ये पॉइंट किया गया. यह सूबेदार क्या करता था? कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन. उसके काम थे पॉलिटिक्स को देखना और मिलिट्री के फंक्शंस करना. बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर ओनली सूबेदार टू fulfill all these duties. So he was supported by the following officers to maintain peace and order in his empire. So these were the following officers. Number 1 is Bakshi. Yes, military paymaster. Who was he? He was the military paymaster means जो military में payments देता है,
ठीक है, ये पोस्ट है, यानी कि ये नॉबल्स है सारे अकबर के। नंबर 2 इज सदर। सदर होता है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जिसके अंडर सारा रिलीजियस डिपार्टमेंट होता है। नंबर 3 फौजदार, मिलिट्री कमांडर। फौजदार था जो मिलिट्री को कमांड देता था अपने आर्मी मैन को। नंबर 4 है कोतवाल, जैसे हमारे अब होता है टाउन पुलिस कमांडर के, जैसे पुलिस चौकी का जो कमांडर होता है ही इज नोन एज कोतवाल। सो ये जितने भी नॉवेल्स है दे हेल्प द सूबेदार टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द एम्पायर। ये जितने भी ये नॉवेल्स थे दे कमांडेड लार्ज आर्मीज। इट मीन्स कि उनके पास काफ़ी पावर थी, वो अपने पास आर्मीज रख सकते थे। दे हैड एक्सेस टू द रेवेन्यू, मीन्स कि कलेक्ट जितना मर्जी कर सकते थे। एंड दीज नॉवेल्स वेर वेरी लॉयल टू द एम्परर एंड द एम्पायर। एम्परर मीन्स रूलर, लॉयल मीन्स ऑनेस्ट। इनके जितने भी ये हमने पढ़े हैं सूबेदार, बख्शी, सदर, वो बहुत ऑनेस्ट थे अपने किंग के लिए और अपने एम्पायर के लिए, पूरी ईमानदारी से वो काम करते थे। नंबर 3 बट देयर लॉयल्टीज वर वीकन्ड बाय देयर सेल्फ इंटरेस्ट बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। बट व्हाट हैपेंड इन द 17th सेंचुरी कि उनकी जो लॉयल्टी थी, ऑनेस्टी थी, इट वॉज वीकन्ड। वीकन्ड मतलब कि वो टूटनी शुरू होगी, कमज़ोर होनी शुरू होगी, बिकॉज उनके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, उन्होंने अपने डिफरेंट जो है नेटवर्क्स बना लिए, मीन्स कि अपना छोटे छोटे एम्पायर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यही एक रीज़न था। इट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि जो नॉबल्स थे उन्होंने भी मुगलों का साथ छोड़ दिया था। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिसीज ऑफ अकबर। यस स्टूडेंट, our next topic is Akbar and the idea of Ibadat Khana. Student, this is very important. First of all, what is Ibadat Khana? Ibadat means prayer, जहाँ हम क्या कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। हॉल, खाना मतलब हॉल। सो जहाँ पे हम प्रे करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इबादत खाना। यस, अकबर स्टार्टेड डिस्कशंस ऑन रिलीजन एट फतेहपुर सिकरी। क्या हुआ, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को बुलाया है, जैसे उलेमास, ब्राह्मणास, प्रीस्ट, ज़ोरास्ट्रीज। ठीक है, उनको बुलाया एंड ही हैड डिस्कशन विद पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। ये मीटिंग हुई कहाँ थी, इन इबादत खाना में हुई थी। ठीक है, यस, क्यों हुई थी, वाई, दिस इज द रीजन, वॉन्टेड टू नो अबाउट डिफरेंट रिलीजन एंड सोशल कस्टम। बिकॉज अकबर को बहुत इंटरेस्ट था, ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट डिफरेंट रिलीजन। हर एक धर्म को डीपली वो जानना चाहता था कि वहाँ पे कौन से रीति रिवाज हैं, क्या कस्टम है, ठीक है, लोग क्या करते हैं। ठीक है, आफ्टर द डिस्कशन व्हाट हैपेंड, ही concluded that religious scholars were often by gods. Yes, it means that कि उसने जब डिस्कशन की ब्राह्मणा से, ज़ोरास्ट्रिस्ट थे, प्रीस्ट थे, तो उसने देखा कि जितने भी ये रिलीजियस स्कॉलर हैं, टीचर्स हैं, गुरु हैं, दे वर ऑफन बाई गॉड। मीन्स कि ये बहुत कट्टर है, ये किसी और धर्म के बारे में नहीं सुन सकते, यानी कि उनको अपने धर्म से ज़्यादा लगाव है। सो दे वर इंटॉलरेंट टूवर्ड्स द अदर्स रिलीजन। सो अकबर वॉज डिससेटिस्फाइड। वट इज़ द मीनिंग, कि ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, बहुत उसे निराश हुआ वो। सो आफ्टर द डिस्कशन ही गेव द आइडिया ऑफ सुलेकुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ ये चैप्टर। सो उसने कौन सा एक नया आइडिया बनाया, सुलेकुल। वट इज़ द मीनिंग ऑफ सुलेकुल, यूनिवर्सल पीस, के सभी जगह पे क्या हो, पीस। सो अंडर दिस आइडिया ही गेव 2-3 पॉइंट्स। नंबर 1, people should not be discriminated on the basis of religion. So first उसने क्या बोला इस आइडिया के अंडर, कि nobody should be discriminated, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव होगा on the basis of religion. ठीक है, नंबर 2, फोकस्ड ऑन 3 एथिक्स। एथिक्स होते हैं मॉरल प्रिंसिपल। सो उसने 3 चीज़ों पे स्ट्रेस दिया, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस, कि ये तीनों चीज़ें, ठीक है, मीन्स कि पीपल हैव टू अडॉप्ट। सो यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इट मीन्स दैट कि उसने लोगों को ये बोला कि यू हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स यूनिवर्सली, कि हर एक लोगों पे ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। सो दिस वॉज द आइडिया ऑफ सुलेकुल। वट इज सुलेकुल, सुलेकुल मीन्स यूनिवर्सल पीस। दिस आइडिया वॉज गिवन बाय अकबर आफ्टर द डिस्कशन विद द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन. So these are the last points. Abul Fazl
helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of सुलेकुल. So अब उन्होंने एक विजन ऑफ गवर्नेंस यानी कि उन्होंने अब एक नया गवर्नमेंट करने का, ठीक है, गवर्न करने का एक नया विजन बनाया कि अब हम इसके बेस पे, आइडिया ऑफ सुलेकुल के बेस पे नए तरीके से अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे. सो इस आइडिया को फ्रेम करने में हेल्प किसने की? अबुल फजल ने. ठीक है, हु वाज ही, कौन था ये? ही वॉज वन ऑफ द 9th जेम इन द कोर्ट ऑफ अकबर. सो दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां. सो इस प्रिंसिपल को, गवर्नमेंट करने के तरीके को किसने फॉलो किया? जहांगीर एंड शाहजहां ने. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच.